Good morning, dear students. Today I am going to explain you remaining part of lesson 2, animals in their surroundings. In previous video I told you about different body features like body covering and eating habits. So today I am telling you other body features of animal. So let's start with other features of animals. Breathing method. Breathing is the process by which animals take in and give out air. The air they breathe in supplies oxygen to their bodies. This oxygen is used to release energy from food. Breathing means जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, उस प्रोसेस को ब्रीदिंग कहा जाता है. ब्रीदिंग में हम ऑक्सीजन से एनर्जी लेते हैं, वो एनर्जी फूड से रिलीज करता है. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग. Like birds, reptiles and mammals breathe through their lungs. Air enters the body through the nostrils and reach the lungs through the windpipe. ये सभी एनिमल्स लाइक बर्ड्स, रेप्टाइल, मैमल्स लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. एयर इनकी बॉडी में नोस्ट्रिल्स के थ्रू विंड पाइप से होते हुए लंग्स में पहुंचती है. Oxygen from the air is absorbed by the blood and carbon dioxide from the blood is passed into the air. ऑक्सीजन एयर से एब्जॉर्ब की जाती है ब्लड के थ्रू और ब्लड से ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आती है. Blood has a special substance called hemoglobin that carries oxygen to all parts of the body. ब्लड में एक स्पेशल सब्सटेंस होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं. ये ऑक्सीजन को सभी पार्ट्स तक पहुंचाता है. Insects have small holes called spiracles on their body. इंसेक्ट की बॉडी में ब्रीदिंग के लिए छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें स्पैरिकल्स कहा जाता है. Spiracles lead into a network of tubes present all through the body called trachea. उसकी बॉडी में छोटे छोटे नेटवर्क होते हैं ट्यूब्स के जिन्हें ट्रैकिया कहा जाता है. Air enters the spiracles and then pass through the trachea. Oxygen from the air is absorbed by the tissue of the body. Fish, tadpole and other aquatic animals breathe through gills. Gills are thin, flat structure that have many blood vessels. Gills होती हैं छोटे छोटे ट्यूब से मिलकर बने होते हैं, ब्लड वेसल से मिलकर बने होते हैं. Fish take in water through their mouth. When this water passes over the gills, oxygen dissolved in water is absorbed and carbon dioxide is released by the blood. The carbon dioxide then passed out of the gills. Fish मुंह से पानी को अंदर लेती हैं और जब ये वाटर गिल्स के पास पहुंचता है तो वहाँ पर जो वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है उस ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्ब करता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है. Whales and dolphins also live in water. They have lungs that can take in oxygen only from air, so they cannot breathe underwater and have to come up to the surface. They have blowhole for breathing. Whales and dolphins, वैसे तो ये वाटर एनिमल है लेकिन इनमें लंग्स होते हैं, तो ये वाटर के सरफेस में आके ब्रीदिंग करते हैं. इनके एक होल होता है, ब्लो होल, उसके थ्रू वो ब्रीदिंग करते हैं. An earthworm breathes through its skin. Frogs breathe
through their skin when they are in water. फ्रॉग स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं, अर्थवॉर्म भी स्किन से ब्रीथ करते हैं. जब वो वाटर में होते हैं तो स्किन से ब्रीथ करते हैं और जब वो लैंड पर होते हैं तो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. बेबी फ्रॉग्स और टेडपोल्स ब्रीथ थ्रू गिल्स. नेक्स्ट फीचर इज मूवमेंट. एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर in search of food and water, to protect themselves from enemies and to look for shelter. Animals मूवमेंट भी करते हैं, वो फूड की खोज में, वाटर के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मूवमेंट करते हैं. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. सम एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड हैव 4 limbs. The front limbs are called forelimbs and the back limbs are called हिंड लिम्स. जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं उनके 4 लिम्स होते हैं. फ्रंट लिम्ब को हम 4 लिम्स कहते हैं और बैक लिम्ब को हिंड लिम्स. ह्यूमन बीइंग्स यूज देयर हिंड लिम्ब और लेग्स टू वॉक, स्टैंड, रन एंड स्विम. द लेग्स हेल्प देम टू स्टैंड straight and have an erect posture. The forelimbs or arms are used to hold objects. ह्यूमन बीइंग हैंड लिम्ब का यूज़ करते हैं वॉक करने के लिए, स्टैंड करने के लिए, रन के लिए और स्विमिंग के लिए. 4 लिम्स से वो किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए हेल्प करते हैं. हॉर्स, डॉग्स, गोट्स, टाइगर, जिराफ एटसेट्रा वॉक एंड रन ऑन ऑल द 4 लिम्स. ये सभी एनिमल्स लाइक हॉर्स, डॉग, गोट, टाइगर 4 लिम्स से मूव करते हैं. कंगारू हॉप अबाउट ऑन देयर हैंड लिम्स बिकॉज दे आर लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर देन देयर 4 लिम्स. कंगारू हैंड लिम्स से कूदता है क्योंकि उसके जो 4 लिम्स होते हैं वो कम स्ट्रॉन्गर होते हैं. रेप्टाइल्स. Crocodile and lizard have 4 short legs. They use these to crawl on the ground. Reptiles के जो legs होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं तो वो उनसे crawling का काम करते हैं, रेंगने का काम करते हैं. Lizards can also crawl on the walls and ceiling of our house. Lizard भी walls पे रेंगते हुए चलती है. Snakes do not have legs. They have scales on the underside of their bodies. Their muscles are very strong and they have a flexible backbone. All these features help them to grip the ground and move. Snakes के leg नहीं होते हैं, उसकी बॉडी में scales होते हैं जो उसको क्रॉल करने में, रेंगने में हेल्प करते हैं. उसकी जो बैकबोन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है. नेक्स्ट इज इंसेक्ट. इंसेक्ट हैव 6 legs that help them to move. Ants and cockroaches crawl on their legs. Grasshopper and stick insect have long hind limbs. इंसेक्ट के 6 legs होते हैं जो उन्हें मूव करने में हेल्प करते हैं. आंट एंड कॉकरोच क्रॉल करते हैं अपने लेग से. ग्रास हॉपर कूदते हैं अपने हिंड लिम्ब से. इंसेक्ट सच एज बटरफ्लाई, मॉथ्स एंड ड्रैगन फ्लाइज हैव विंग्स फॉर फ्लाइंग. बटरफ्लाइज, ड्रैगन फ्लाई इनके मूव करने के लिए विंग्स होते हैं. These wings are made of thin scale that may be colored sometimes. A butterfly has colored wings. As insects do not have bones or strong muscles like birds, their wings move with the help of their chest muscle. Some insects such as bedbugs and lice cannot fly. Instead, they move by crawling. बटरफ्लाई के कलर्ड विंग्स होते हैं
एंड इंसेक्ट डू नॉट हैव बोन्स और स्ट्रॉन्ग मसल्स। इंसेक्ट जो होते हैं उनकी बोन्स स्ट्रॉन्ग नहीं होती है जैसे बर्ड्स की होती हैं। Some insects such as bedbugs and lice cannot fly. कुछ इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं जो उड़ नहीं सकते हैं। That's all for today. Thank you.